students? Who all are there in class? Okay. कोमल, मनीषा, अदिति और कौन कौन है? मानसी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ऋषभ, विशाखा, आई एम फाइन। हेलो। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। मैंने लास्ट क्लास तुम लोगों को कहा ही था। ज्योग्राफी में हमने पूरा कर दिया। हिस्ट्री में देखो, पहले हिस्ट्री में कुछ चैप्टर पीडीएफ्स के थ्रू मैंने तुमको भेजे थे और बताए थे, लेकिन उन चैप्टर्स को मैं अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूं। जब हम लाइव क्लासेस में आए हैं तो हिस्ट्री के पूरे 10 चैप्टर्स ही वापस से करेंगे। हाउ, व्हेन एंड वेयर फर्स्ट चैप्टर, इनसे स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री के भी सारे ही चैप्टर्स हम करेंगे। ओके, तो पहला चैप्टर आ जाओ। हाउ, व्हेन एंड वेयर, पेज नंबर 1। सबने निकाल लिया? हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, हाउ, व्हेन एंड वेयर। ओके, अब इसमें एक पहला क्वेश्चन दिया है, हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स? There was a time when historians were fascinated with dates. There were heated debates about the dates on which rulers were crowned or battles were fought. In common sense notion, history was synonymous with dates. You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing dates. History is certainly about changes that occurs over time. It is about finding out how things were in the past and how things have changed. As soon as we compare the past with the present, we refer to time. We talk of before and after. Living in the world, we do not always ask historical questions about what we see around us. We take things for granted as if we see has always been in the world we inhabit. But most of us have our moments of wonder. When we are curious and we ask questions that actually are historical. Watching someone sip a cup of tea at a roadside tea stall, you may wonder, when did people begin to drink tea or coffee? Looking out of the window of a train, you may ask yourself, when and where railways built and how did people travel long distances before the age of railways? Reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people got to hear about things before newspaper to be printed. So, all such historical questions refer us back to the notions of time. But time does not have to be always precisely dated in terms of a particular year or a month. Sometimes it is actually incorrect or to fix precise date to process that happens over a period of time. People in India did not begin drinking tea one fine day. They developed a taste for it over time. There can be no one clear date for a process such as this. Similarly, cannot fix one single date on which British rule was established or the national movement started. As changes took place within the economy and society, all these things happened over a stretch of time. We can only refer to a span of time, an approximate period over which particular changes became visible. देखो, डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? डेट्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं
डेट्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? डेट्स इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं कि हर एक चीज का एक डेट जानना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। एक जरूरी इसलिए होता है कि कोई चीज का भी एक टाइम पीरियड हमको पता होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर क्वेश्चंस उठते हैं, जैसे कि तुम्हारा क्वेश्चन ये उठता है, चाय पीते हैं तो चाय कब इंडिया में डेवलप हुई? ट्रेन देखते हैं तो ट्रेन कब से स्टार्ट हुआ? क्या नेशनल मूवमेंट कब स्टार्ट हुई? ब्रिटिशर्स कब हमारे कंट्री में आए? कब उन्होंने हमारे देश पे कब्जा कर लिया? तो ऐसा बहुत सारे प्रश्न जो है वन में उठते हैं। टू पेज नंबर टू। अब ये सारी चीज को जो भी हम सोचते हैं मन में, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। इसको, इन सारी चीजों को होने में एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम लगा, काफी सारा समय लगा। ये जो समय, जिस समय के बीच में ये सारी चीजें हुई, इनडेफिनेट एक टाइम पीरियड के बीच में हुआ। तो उस पीरियड ऑफ टाइम को हम पढ़ते हैं, जिससे हमको जानने को मिलता है कि कौन कौन से समय में कौन कौन सा इश्यूज हुआ। तो इस तरीके से जो है ये टाइम पीरियड्स को जानना जरूरी होता है। Why then do we continue to associate history with a strong string of dates? This association has a reason. There was a time when history was an account of battles and big events. It was about rulers and their policies. Historians wrote about the year a king was crowned, the year he married, the year he had a child, the year he fought a particular war, the year he died, and the year the next ruler succeeded to the throne for event. Such as these specific dates can be determined, and in history, such as these debates about dates continue to be important. तो जब हम हिस्ट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं, हाँ, तो जो चैप्टर्स मैंने करवा दिए थे उनको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है? नहीं करेंगे। चैप्टर 3 एंड 10 हिस्ट्री में मैंने करवा दिया था ना। हाँ, तो चैप्टर 3 और 10 को इसमें, चैप्टर 3 और 10 नहीं करेंगे। रूलिंग द कंट्री साइड कर लिया था हमने, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस कर लिया था हमने, ये दो चैप्टर कर लिए थे ना, इनको नहीं करेंगे। वन को तो हमने किया नहीं था ना, वन को थोड़ी किया था, चैप्टर 1 को। हाउ, वेयर एंड व्हेन एंड वेयर। 3, 4, 8, 11 कर लिया हमने। 3, 4, 8, 11, हाँ तो ठीक है। 3, 4, 8, 11 हमने कर लिया है, इनको नहीं करेंगे। अभी हम करेंगे 1, 2, 5, 6, 7 और 9 हिस्ट्री में, ठीक है ना? चैप्टर 1 तो हमने नहीं किया है। चैप्टर 1 थोड़ी किया हमने पहले। जिन्होंने ये चैप्टर्स मिस कर दिए हैं, वो इन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स जो है, जैसे चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 है, 8 है, 10 है, ये हम कर चुके हैं। तो इन चैप्टर से रिलेटेड तो जो क्वेश्चन आंसर्स है, जिन्होंने पहले नहीं थे वो कलेक्ट कर लेना, और अगर फिर भी नहीं मिले तो मेरे को बता देना, मैं दोबारा वो क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ऋषभ है, मोहित है, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था, जिन्होंने ज्वाइन कर रखा था, उनसे कांटेक्ट करके उन क्वेश्चन आंसर्स को कलेक्ट करने की कोशिश करना। अगर मान लो वो नहीं तुमसे कलेक्ट हुए हैं तो बाद में, अभी तो हिस्ट्री की क्लास चल रही है ना, तो बता देना, मैं दे दूंगा मेरे पास जो अवेलेबल होंगे। चैप्टर 1 तो हमने पहले भी नहीं किया था, व्हेन, वेयर एंड हाउ थोड़ी किया हमने, ठीक है? तो चैप्टर 1 तो कर लें। तो इस तरीके से जब हम हिस्ट्री में अलग अलग किंग्स, अलग अलग किंगडम्स के बारे में, चैप्टर 12 की बात ही किसने की? चैप्टर 10 तक तो लास्ट है।
तो इस तरीके से जब हम अलग अलग किंग्स और किंगडम्स के बारे में पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो हमको ये पता चलता है कि किस पीरियड में कौन कौन से किंग्स हुआ करते थे और किसके रूल में, किसकी टेरिटरी में किस तरीके के जो है डेवलपमेंट हुए, कौन कौन से किंग्स ने कौन कौन से काम किए आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, क्या कंस्ट्रक्ट करवाया। जब ताजमहल देखते हैं तो ताजमहल देखने के बाद शाहजहां के बारे में पता चलता है। तो इस तरीके से अलग अलग किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में पता चलता है और उस किंग और किंगडम्स या उस पीरियड ऑफ टाइम में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, क्या क्या वर्क हुए हैं, इसके बारे में भी हमको पता चलता है। Now, which dates? By what criteria do we choose a set of dates as important? The dates we select, the dates around which we compose our story of the past, are not important on their own. They become vital because we focus on a particular set of events and important. If our focus of study changes, if we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significant. Consider an example. In the histories written by pre-historians in India, the rule of each governor general was important. These histories began with the rule of first governor general Warren Hastings and ended with the last viceroy Lord Mountbatten. तो इस तरीके से जब हम बैक के बारे में पढ़ते हैं या पिछले टाइम के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमको जानने को मिलती हैं। जैसे कोलोनाइजेशन रूल में या ब्रिटिश रूल में सबसे पहले जो है गवर्नर जनरल कौन बने, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे किस तरीके से उन्होंने हमारी कंट्री को रूल किया, क्या क्या अमेंडमेंट्स किए, क्या क्या चेंजेस किए, इन चीजों के बारे में पता चलता है। उनके पीरियड से लेके लास्ट वाइसरी जो रहे इंडिया के लॉर्ड माउंटबेटन, उनके तक में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, किस तरीके से हमारी कंट्री में क्या क्या मूवमेंट्स हुए हैं, किस तरीके से नेशनल मूवमेंट्स हुए हैं, किस तरीके से हम जो है वो अब इंडिपेंडेंट हुए, किस तरीके से हम डेमोक्रेसी डेवलप किए, ये सारी चीजों के बारे में पता चलता है। हेस्टिंग्स, वेल्सली, बेंटिक, डलहाउजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग्स, इरविन. It was a seemingly never-ending succession of governor generals and viceroy. ये सारे जो थे ये गवर्नर जनरल्स हुआ करते थे ब्रिटिश टाइम में, जिन्होंने इंडिया को रूल किया। इस तरीके से जो है हमको पता चलता है। All the dates in these history books were linked to these personalities, to their activities, policies, achievement. It was as if there nothing outside their lives that was important for us to know. The chronology of their lives mark the different chapters of history of British India. तो इस तरीके से हर एक वाइसरी ने किस तरीके से रूल किया, किस तरीके से गवर्नमेंट चलाई, क्या क्या प्लान आउट किए, क्या क्या पॉलिसीज फ्रेम की, इस तरीके से हमको उनके जीवन आधार के बारे में पता चलता है। पर्टिकुलर किंग के एक्ट से, उसके किंगडम से, उसके कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। जैसे कि हम कहते हैं कि अकबर एक अच्छा राजा था, तो अच्छा राजा क्यों था कि अकबर जो है अपने टाइम पीरियड में कोई कम्युनल क्लास नहीं हुआ, हिंदू रिलीजियन मुस्लिम रिलीजियन को समानताएं दी उसने, दोनों को समान अधिकार दिया। तो इस तरीके से जो है उस किंग्स के बारे में भी पता चलता है कि वो एक अच्छा कैरेक्टर का था, बुरे कैरेक्टर का था, कैसा व्यक्तित्व का था, किस नेचर का था, ये सारी चीजें जो है हमको पता चलता है। Can we not write about the history of this period in a different way? How do we focus on the activities of different groups and classes in Indian society within the format of this history of Governor General? When we write history or a story, we divide it into chapters. Why do we do this? It is to give each chapter some coherence. It is to tell a story in a way that makes some sense and can be followed. In the process, we focus only on those events that help us to give shape to the story we are telling. In the histories that revolve around the life of British Governor Generals, the activities of Indians simply do not fit, they have no space. What then we do? Clearly we need another format for our history.
This would mean that the old dates with no longer had significance that earlier had. A new sets of date will become more important for us to know. जैसे जैसे नए नए इवेंट्स होते हैं, जैसे जैसे नए नए ऐतिहासिक चीजें क्रिएट होती है, अपने आप हिस्ट्री बनता जाता है, अपने आप हिस्ट्री डेवलप होती है। इंडिया जब वर्ल्ड कप जीतती है तो वो एक हिस्टोरिकल इवेंट बन जाता है, इतिहास के पन्ने में आ जाता है, इंडिया ने इस साल जो है वर्ल्ड कप जीता। जब कोई पर्टिकुलर प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, वो मैन ऑफ द मैच जीतता है, वो हिस्ट्री बनती है। कोई स्पोर्ट्समैन ओलंपिक्स जीतता है, वो हिस्ट्री बनती है। कोई किसी देश का प्रधानमंत्री बनता है, एक बड़ा ऐतिहासिक चीज होती है, वो हिस्ट्री बनती है। इस तरीके से हिस्ट्री क्रिएट होते रहती है, नए नए इवेंट्स होते रहते हैं, हिस्ट्री के पन्ने में नए नए चैप्टर्स जो है वो लिखे जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ऑलवेज बाय गुड वर्क्स एंड इवेंट जो है वो हिस्ट्री क्रिएट होते रहती है। हाउ डू वी पीरियडाइज? In 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India. In this, he divided Indian history into 3 periods: Hindu, Muslim, and British. This period came to be widely accepted. This periodization came to be widely accepted. Can you think of any problem with this way of looking at Indian history? Why do we try and divide history into different periods? We do so in an attempt to capture the characteristics of time in central features as they appear to us. So the terms through which we periodize that is demarcate the difference between periods become important. They reflect our ideas about the past. They show how we see the significance of the change from one period to the next. हिस्ट्री को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, ताकि हमको जो है चेंजेस का, फर्क का पता चले कि इस डेफिनेट पीरियड में क्या हुआ था, किस तरीके के इवेंट्स हुए थे, किस तरीके की चीजें हुई थी। उसके बाद में जो टाइम आया उसमें किस तरीके के चेंजेस हुए। तो जब हम इसको पीरियड्स में बांटते हैं तो हमको चेंजेस का पता चलता है कि इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में क्या हुआ था, इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में क्या चेंजेस हुए, किस तरीके के क्या इवेंट्स हुए, किस तरीके क्या क्या इश्यूज हुए। इन सारी चीजों के बारे में जो है हमको पता चलता है। तो इस तरीके के से जो है हम हिस्ट्री को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि उन पर्टिकुलर पीरियड्स के एक्शन और चेंजेस के बारे में हमको पता चले। Mill thought that all Asian societies were at a lower level of civilization than Europe. According to his telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslim despots ruled the country. Religious intolerance, caste, taboos, and superstitious practice dominated social life. British rule, Mill felt, could civilize India. To this, it was necessary to introduce European manners, arts, institutions, and laws in India. Mill, in fact, suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of Indian people, for India was not capable of progress without British help. मिल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में गवर्नर थे, उनके आने से पहले जो हमारी कंट्री थी वो 2 सेक्शन में बटी हुई थी, हिंदूज एंड मुस्लिम्स मेनली। अब यानी या तो कुछ किंगडम्स में हिंदू किंग्स का राज था या मुगल्स आने के बाद मुस्लिम किंग्स का राज था। तो इस तरीके से जो है हिंदू मुस्लिम में जो है सोसाइटी डिवाइड होकर और कन्वर्ट होकर रही गई। मिल्स आने के बाद में क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस हुआ, ब्रिटिश आर्ट आर्किटेक्चर, ब्रिटिश रूल्स रेगुलेशंस जो है वो लागू होने लगे। अब ये जो मिल था, गवर्नर जनरल मिल, इनका ये मानना था कि इंडिया के हर एक रीजन पे
ब्रिटिश का कंट्रोल होना चाहिए। अब इंडिया के हर एक रीजन पे ब्रिटिश का कंट्रोल होने से क्या होगा, इंडिया के हर एक रीजन में ब्रिटिश का कंट्रोल होने से उनको लगता था एक ब्रिटिश लाइफस्टाइल इंट्रोड्यूस होगी। ब्रिटिश लाइफस्टाइल इंट्रोड्यूस होने से जो भारत के लोग रहेंगे वो खुश रहेंगे, उनका डेवलपमेंट होगा, ये उनकी सोच थी। देखो, जब हिंदू किंग्स थे तब हिंदू किंग्स ने हिंदुइज्म को डेवलप किया, मंदिरें बनी, तांजावुर, हाथी गुम्फा, मोहनजोदारो, इस तरीके का सिविलाइजेशन हुआ, पूरी जगन्नाथ टेम्पल, तिरुपति बालाजी टेम्पल, इस तरीके के टेम्पल्स डेवलप हुए। मुस्लिम्स आए, उन्होंने जामा मस्जिद बनाया, मोती मस्जिद बनाया, ताजमहल बनवाया, कुतुब मीनार बनाया, लाल किला बनाया, उन्होंने अपना एक ट्रेडिशनल वे दिखाया। ब्रिटिश आए तो ब्रिटिशर्स ने एक ब्रिटिश आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ब्रिटिश कल्चर जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। जैसे उन्होंने विक्टोरिया मेमोरियल बनाया, हावड़ा ब्रिज बनाया, रेलवे ट्रेन इंट्रोड्यूस किया। तो उन्होंने इस तरीके से लोगों के अंदर में एक ब्रिटिश कल्चर का इंट्रोडक्शन और ब्रिटिश कल्चर की एक क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश की गई। In this idea of history, British rule represented all the forces of progress and civilization. The period before British rule was one of darkness. Can such a conception be accepted today? In any case, can we refer to any period of history as Hindu or Muslim? Did not a variety of faiths exist simultaneously in these periods? Why should we characterize an age only through the religion of the rulers of time? To do so is to suggest that the lives and practices of the others do not really matter. We should also remember that even rulers in ancient India did not share the same faith. अब लोग अलग अलग कैटेगरी के होने के बाद सब लोगों की अलग अलग धर्म, अलग अलग विचारधाराएं थी। कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ लोग थे जो एक पर्टिकुलर रिलीजन, एक पर्टिकुलर विचारधारा से जो है प्रेरित थे। कोई दूसरे सेक्शंस के लोग थे जो एक दूसरी विचारधारा, दूसरे सेक्शन या रिलीजन से जो है वो प्रेरित थी। तो इस तरीके से अलग अलग कम्युनिटी जो है अलग अलग विचारधारा थी। अलग अलग विचारधारा यानी अलग अलग सोच, अलग अलग कस्टम्स, अलग अलग ट्रेडिशंस। पीरियडाइज का मतलब होता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कैटेगराइज करना। मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern. These two has its problem. It is a periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all forces of modernity, science, reason, democracy, liberty and equality. Medieval was a term used to describe a society where these features of modern society did not exist. Can we uncritically accept this characterization of the modern period to describe the period of our study, as you will see in this book? इस तरीके से जो हिस्ट्री जो था वो कई पार्ट्स में बांटे गए। पहला जो शुरुआती पीरियड था वो एंशिएंट पीरियड, जो बीच का पार्ट था वो मेडिवल पीरियड, जो बाद का पार्ट आया उसको तुम्हारा मॉडर्न पीरियड। तो इस तरीके से तीन अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जो है इस पीरियड्स को जो है वो डिवाइड किया गया। अब क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट इज कॉलोनियल? कॉलोनियल शब्द कहां से आई? कॉलोनियल शब्द जिसको हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में आई थी। व्हाट इज कॉलोनियल? In this book, you will read about the way the British came to conquer the country and establish their rule, subjugating local nawabs and rajas.
You will see how they established control over the economy and society, collected revenue to meet all their expenses, bought the goods they wanted at low prices, produced crops they needed for export, and you will understand the changes that came about as a consequence. You will also come to know about the changes British rule brought about in values and taste, customs and practices. When the subjugation of one country by another leads to these kind of political, economic, social, cultural changes, we refer to the process as colonization. Colonization या colonial का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो है वो हमारे कंट्री में बिजनेस मोटिव से आए, धीरे धीरे कैसे उन्होंने जो है इंडिया के रीजन्स पे कब्जा जमाना शुरू कर दिया, कैसे उन्होंने नवाब और जो छोटे राजा, लोकल राजा थे, उनको कॉन्फिडेंस में लिया, किस तरीके से फिर उनको कॉन्कर कर लिया, किस तरीके से उन्होंने इंडिया में टैक्सेशन लेना शुरू कर दिया, उन टैक्सेशन का पैसा वो अपनी डेवलपमेंट के लिए करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे जो है वो हमारी पूरी इंडिया में, पूरे कंट्री के अंदर में एक ब्रिटिश साम्राज्य जो है उन्होंने डेवलप कर लिया। तो इस चीजों को, ये सारा जो समय है, इसको हम कहते हैं कोलोनाइजेशन। समझ में आया सबको कोलोनाइजेशन? ओके, गुड। अब however find all class ये छोड़ दो, अब हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स में। One important source is the official records of the British administration. The British believed that act of writing was important. Every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation had to be clearly written up. Once this was done, things could be properly studied and debated. This conviction produced an administrative culture of memos, notices and reports. एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड में सारी चीजों को फिर रिटर्न में लिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो प्लान करती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो चीजें एग्जीक्यूट करती थी, इन सभी चीजों का वो राइटिंग्स में रिकॉर्ड रखा करती थी। जैसे फाइल मेंटेन होता है ना, उस तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था राइटिंग्स में, जिससे हमको हर एक इवेंट्स के बारे में जो है वो पता चलता था, हर एक चीजों के बारे में जो है पता चलता था। वो उसका एक रिकॉर्ड पूरा मेंटेन करती थी राइटिंग्स में। The British also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved. So they set up record rooms attached to all administrative institutions. The village Tehsildar's office, the collectorate, the commissioner's office, the provincial secretariats, the law courts, all had their record rooms. Specialized institutions like archives and museums were also established to preserve important records. जैसे आज कोर्ट में हर केस का रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड रूम्स होता है, उसी तरीके से ब्रिटिशर्स ने जो है हर तहसील ऑफिस पे, कमिश्नर ऑफिस पे, कोर्ट्स पे जो है रिकॉर्ड रूम्स डेवलप कर रखे थे, जहां पर हर एक कार्य का, हर एक इवेंट का जो है वो रिकॉर्ड रखा जाता था। उसके बाद में इनको फाइल्स में मेंटेन किया जाता था। इन फाइल्स को मेंटेन करके म्यूजियम्स होते थे, जहां पर जो है इनको प्रिजर्व करके रखा जाता था। तो इस तरीके से जो है हमको ब्रिटिश हर एक इवेंट का और जो है हमको लेखा जोखा या रिटन रिकॉर्ड्स मिलता है, जिसमें टाइम टू टाइम इवेंट्स, टाइम टू टाइम क्या चेंजेस किए गए थे, उन सब का रिकॉर्ड्स जो है वो हमको मिल जाता है। Letters and memos that moved from one branch of administration to another in the early years of 19th century can still be read in archives.
You can also study the notes and reports that district officials prepared or the instructions and directives that were sent by officials at the top to provincial administrators. यहाँ तक कि उस समय के जो टॉप ऑफिशियल्स होते थे, जो लोग ऑर्डर्स देते थे, लिखित में जो इंस्ट्रक्शंस दिया जाता था, लिखित में जो इंस्ट्रक्शंस रिकॉर्ड्स वगैरह दिया जाता था, उन इंस्ट्रक्शंस का, उन ऑर्डर्स की कॉपीज जो है आज तक हम देख सकते हैं, आर्कीव्स में रखा गया है। आर्कीव्स एक तरीके का म्यूजियम होता है जहां पर ओल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। तो वहां पर हमको इन सारी चीजों की जो है पूरी डिटेल्स मिलती है, जिसे कब किस वाइसरी ने क्या ऑर्डर दिया था, किस तरीके के क्या लॉज फ्रेम किए गए थे, किस तरीके के क्या कानून बने थे, ये सारे चीज जो है वो आर्कीव्स में हमको मिलते। यहाँ तक कि महात्मा गांधी के, जवाहरलाल नेहरू के लिखे हुए पत्र तक जो है, या उस समय लिखे हुए जो बड़े बड़े लीडर्स के जो लेटर्स थे, वो भी आर्कीव्स में प्रिजर्व करके रखे गए हैं, जिनसे हमको ये सारी चीजों के बारे में पता चलता है। In the early years of the 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists, that is, by those who specialized in the art of beautiful writing. By the middle of 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed and proceedings of each government department. इनको किस तरीके से लिखा गया है? इनको जो कैलीग्राफिस्ट होते थे, जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स होते थे, जिनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है, वो लोग अलग अलग वाइसरी, गवर्नर के जो राइटिंग्स हैं, उनको एक साफ सुथरे हैंडराइटिंग के अंदर में लिख के कॉपी करके उन्होंने अलग रिकॉर्ड्स बनाए। प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद में उनकी प्रिंट्स निकाली गई, एक एक नहीं कई कई कॉपीज में निकाली गई, और बहुत सारे कॉपीज बना के जो है उनको प्रिजर्व करके रखा गया। तो इस तरीके से जो है हर एक जोन्स, हर एक ऑफिस के जो है रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखा गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे से चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? Okay, good. So that's it for today. Thank you and have a nice day.